हेलो एवरीवन, एसके न्यूज वेव में मैं रमेश, मैं आफरीन। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे जो अब अफगानिस्तान में चल रही है। ये एक ऐसा देश है जहां कलशनिकोव और ग्रेनेड्स का डर बचपन में ही बिठा दिया जाता है। देखा जाए तो अफगानिस्तान में पावर की वॉर पिछले 43 ईयर से चल रही है। इनमें देखा जाए तो दुश्मन तो कई सारे हैं, कुछ के लिए सोवियत्स, कुछ के लिए अमेरिकन और अब तालिबान है। 15 अगस्त 2021 को जब इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तब तालिबान वहां के लोगों की आज़ादी छीन रहा था। द केओस स्टार्टेड जब अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा और यूएई में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। इसके बाद तालिबान ने काबुल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। This is true and it's not hidden that Taliban is known for its atrocity on women and children, and there has been a long record of human rights violations. काबुल पे तालिबान का कब्जा होने के बाद पूरे सिटी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मोर देन 1000 पीपल रीच्ड एट हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनको उम्मीद थी कि किसी तरह से वो अफगानिस्तान से निकल पाएंगे। But it was all dependent on people's fate. Somewhere lucky, somewhere having a bad fate. सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोग प्लेन के विंग्स पे चढ़ रहे थे एंड देन 2 पीपल डाइड फ्रॉम फॉलिंग। 26 अगस्त 2021 को काबुल के एयरपोर्ट के पास 2 बड़े धमाके हुए, जिसमें 170 लोग मारे जाने की खबर आई, इंक्लूडिंग 13 यूएस सोल्जर्स। ISIS claimed the responsibility of attack. US President Joe Biden states that he'll hunt and make terrorists pay. 29 अगस्त 2021 यूएस ने एयर स्ट्राइक की, in which they claim that they have killed 2 ISIS members. After the fall of Kabul, refugee crisis तो होनी ही थी. This has resulted in mass exodus of Afghan people. Afghan people are concerned about the safety, especially women and children. While some countries refuse to let them in, some are openly accepting them. As we all know, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ऐसी ही सिचुएशन अभी अफगानिस्तान में हुई है। तालिबान को ओपनली चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट मिला है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट एंड तालिबान के रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे थे। At present, Indian government talk and negotiating with Taliban in diplomatic talks, which was held in Qatar. India is concerned that Afghanistan will be used as a base for provoking terrorism activities in India. At present, India is trying to isolate Taliban's unofficial government at BRICS Summit and United Nations. 31 अगस्त 2021 को यूएस फोर्स ने फाइनली अफगानिस्तान छोड़ दिया। On 19 September 2021, 24 women activists came out and protested against Taliban for Women Ministry, which was closed by Taliban and currently working as Ministry of Promotion and Virtue and Prevention of Vice. जिसका सिंपल सा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ मॉरल पॉलिसिंग। Afghanistan is also facing leadership crisis. वहाँ की तालिबान गवर्नमेंट के बीच ही violent clashes हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान के फ्यूचर का क्या होगा पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड और डिप्लोमेटिक लेवल पर ये क्राइसिस हर किसी को अफेक्ट करेगी। The Union Education Minister, Mr. Dharmendra Pradhan, issued a 6th edition of National Institution Ranking Framework, that is NIRF. IIT Madras topped in all categories, followed by IISc Bangalore, and third position goes to IIT Bombay. The complete list can be viewed on their website, that is nirfindia.org. Taliban's new education minister, Mr. Nurullah Munir, stated in a video that degrees such as PhD, masters or doctorate have no value. His men are uneducated and still the best. By the way, great way to promote illiteracy and 100 marks for brand placement. Kudos to you, sir. Delhi High Court dismissed an appeal of 5 students who got their admission in LH Medical College and Hospital back in 2016. These students got their admission without the centralized exam, which is conducted by the medical department of institution. The court also said that the backdoor entries in this top education and medical institution should be stopped. Court also said that the admissions in this top institution should be solely based on merit, because hard work of the student should not get wasted. Nowadays, over the internet, there is a new word, pseudo-feminism और फेक फेमिनिज्म। बेसिकली होता यह है कि कुछ लड़कियां लड़की होने का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही है। रिसेंट के लखनऊ के केस से हम बहुत अवेयर है कि उस ड्राइवर की कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उसे क्या कुछ फेस करना पड़ा। हम मानते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को सोशल इनजस्टिस को फेस करना पड़ रहा है,
लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज़ उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है, उसके ऊपर खुलकर बात भी कर रही है। बट क्या बीच सड़क पे किसी को 22 थप्पड़ मारना सही है? हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कों की कोई गलती नहीं होती, फिर भी एक फेक एलिगेशन की वजह से उस लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली केस एंड MIT यूनिवर्सिटी। नो डाउट्स देयर आर राइट्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड देयर सेफ्टी, बट शुड दैट लॉ बी यूज फॉर पर्सनल रिवेंज? अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो ये जाहिर है कि कई लोगों को फेमिनिज़म का ट्रू मीनिंग ही नहीं पता। फेमिनिज़म का मतलब ये नहीं कि हम मेल बैशिंग अप्रोच अपनाएं और अपोजिट जेंडर को फेमिनिज़म का कार्ड यूज़ करके उसे नीचा दिखाइए। फेमिनिज़म का मतलब ये है कि इक्वलिटी बिटवीन बोथ जेंडर्स, चाहे वो वेजेस को लेकर हो या फिर रिस्पेक्ट और स्टेटस को लेके। हमें फेमिनिज़म और सूडो फेमिनिज़म का डिफरेंस समझना होगा। हमारी आप सभी से बस यही गुजारिश है कि आप इस डिफरेंस को समझें, क्योंकि तभी हम एक विकसित समाज बना पाएंगे। स्टैंड विद द ट्रूथ, नॉट विद द जेंडर।